Madam, you are mute. Amita ma'am, please unmute. Sure. Am I audible now? Yes, yes. Okay, a very good afternoon to all of you who are connected with us. On behalf of RBTTI, Dr. Amita Bhatnagar, Director of RBTTI, welcome to all of you. It is very memorable day for us as we are going to start our first e-lecture series, and we are very lucky that we have such an eminent and intellectual person to start with our series. Professor N. Rohan Metai. I welcome you, sir. And all the participants hereby welcome to our program. I'm so happy to see you together here. I hope the discussion on today's topic, using problem solving method in real life situations, will be great and successful, as more than, now it's not showing, but we have registered 200 candidates. So we have received from different part of countries. I hope all of you will enjoy the session, have a good time. Thank you for joining us. But before we move forward, let me introduce Dr. Mettai. Dr. N. Rohan Mettai is currently working as an assistant professor in Amity International University, Uttar Pradesh. And after completing his BSc, B.Ed 4-year integrated course, he has done AMED, PhD. He is also NET qualified. He is having more than 15 years of teaching experience, or organized more than 12 international, national, and international educational events, 10 research papers, and 5 edited books have been published. He has presented more than 30 papers in different seminars, workshops, and conferences, and delivered session as resource person in more than 18 special training programs of government organization. He also acted as coordinator and member of cells like curriculum development, counseling placement, internship, hostel, library, IQAC, sports and cultural meet, NSS, WWC examination, etc. And his research score as per UGC API regulation 2018, assisted in 2020 by a program of Central Universities 266.9. So not to take much more time, I'm going to invite Dr. N. Rohan Metai. It's over to you, sir. Yeah, Dr. Metai. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Amita ma'am, Satish sir. First of all, we started with some technical problems since the topic is a problem. And let us give a smile back to everyone. I mean, please smile, because a smile is one of the best method. If we say just a little smile can heal anything, can solve many problems. At the same time, I would like to start my session with a humble regards and respect for giving me this opportunity by Raksapal Bahadur Teachers Training Institution, Bareilly, Management Committee of the institution, respected principal and like Satish sir and all. And when I just tried to know who are the team to discuss to have this session, I came to know that very, I mean, big, diverse population is here right now, starting from director to research scholar. And the topic, I request, before I start my technical part, I request from my core of the heart, with all the senior faculty members, administrator present over here, research scholars, that I took a risk with this topic. Earlier, I thought that the problem-solving method, but when it connects with the real-life situations, this becomes, little tricky in terms of I failed to deliver this session face to face, and sometimes with a humor, I failed to deliver this session like Baba. See, real-life situation, little philosophical kind of touch is there. Therefore,
I would like to start in this way that all the learned faculty members, senior members, research students, this is just one of the platform where we are just going to have a discussion, and I'm going to share my part of reflection over here and understanding like that. This is just the beginning, and in future, from respective different institutions, if you also organize in such topics, I also can be a participant to your organization in such similar, very challenging topic. So, so I'm starting my, can you see my PPT? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Yeah, thank you. And all those participants who have raised their hands, if there is any questions, we will discuss after the end of the session. Like Sivani, Ravi, Manorama, all have raised their hands. I think that there has been for the delay in the beginning of the session. So in my presentation or session, I have classified into 4 different parts, and the little amended form of classifying the contents. First one is intellectuals perception, which are more kind of we normally do have experience during the seminar and the symposium and workshop sessions. There are lots of researches and findings are discussed. But since the topic is, amenable to the philosophical, social, and cultural aspect also, I try to put it little reflective part also, little informal part also. So the second part will be of. Excuse me, sir. Rohan sir. Yeah. कुछ पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हमारे तक तो आपकी आवाज आ रही है, तो अगर क्लियर है, ये मे भी उनके एंड पे प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है। यस, अगर किसी को आ रहा है तो मेरे तरफ से नहीं है, सबका नहीं आ रहा है तो मेरे तरफ से है। ओके सर, आप कंटिन्यू करिए। इसका रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे, उसका लिंक यूट्यूब में। ओके। So should I go with the bilingual or only English? हेलो जी सर, दोनों भाषा में समझाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, थैंक यू सर, बाइलिंगुअल ठीक रहेगा। ठीक है। So second part जो है एक an angle of traditional setup, because it is going to touch up with our context, that is contextualization part according to the diversity of the country or the culture or the society, and the current trends and the challenges. And the last one is reflective interpretation, connecting dots to life, because when this is the most tricky part, where in the topic you have mentioned in the real life situation, because the meaning of life itself is going to entire participant here. If we collect just opinion or their interpretation of life from all this participation, that is going to be a good data for the research to understand. Right now, let me start with the first part, which is very fundamental and technical part, and available with many resources. I may not be taking much time in this thing. It is some kind of retrospecting with the existing information in and around the different sources. But before this, in our entire school life, higher education life, we have regarding the problem solving. In teacher education, problem solving has been taught as a method of teaching, and in management program, they have taken about it very seriously. And in the last 2 decades, at the global platform,
regarding problem solving, particularly by the corporate organizations, it has been taken so seriously, and we will be discussing that part into current trends and the challenges. So first of all is let us just try to, go back to the previous knowledge, such kind of previous knowledge. So what is a problem and how this is technically defined? Etymologically, in the 14th century, for the first time when it arrived in the society, it meant to, bringing forward to throw something. The word problem, what we are seeing today, came quite later on in the 18th century. Like, is there any problem? Like, no problem. The word no problem came into existence only in the 1882. So the context is the problem child, the phrase problem child, use of the word problem child to reflect something about a child behavior came only into existence in the 15th century. So in terms of evolutionary historical background, the traces are found only from the 14th century in and around. And so from that and from the other academicians, the existing definitions or the meaning provided by some people are mentioned here. A problem exists when a problem solver has a goal but does not know how to accomplish it. Specifically, a problem occurs when a situation is in a given state. A problem solver wants the situation to be in a goal state, and the problem solver is not aware of the obvious way to transform the situation from the given state to the goal state. In his classic monograph on problem solving, the Gestalt psychologist Karl Duncker defined a problem as follows. A problem arises when a living creature has a goal but does not know how this goal is to be reached. So it's very simple. कहने का मतलब प्रॉब्लम जो है, एक तो ऐतिहासिक के तरीके से मैंने जो खोजा उसमें जो मिला 14वीं सदी में किसी बात को आगे लेके आना, मगर पता नहीं होता है कैसे लेके आना है, वहां से ट्रांसफॉर्म होके सबसे ज्यादा जब गेस्टाल्ट ने इसमें काम किया और सारा टीचर एजुकेशन वाला पता है गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में, मगर उसके बाद बहुत सारे फिलोसोफर्स एंड सोशल साइंटिस्ट, मेनी अदर एकेडमिशियंस, बहुतों ने इस पे अध्ययन किया है और बहुत सारा रिसर्चेस भी हुआ है। कुल मिला के प्रॉब्लम जो आज के तारीख में हम जो देख रहे हैं वो सरल रूप में इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक उद्देश्य है, प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम मगर कैसे करेंगे ये पता नहीं है। जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड का उनको पता है, जब इससे जुड़ा हुआ समस्या भी पैदा होता है, जैसे कि एक्सपेक्टिंग व्हिच इज नॉट अचीवेबल, यानी ऐसा कोई उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना जो नहीं पा सकता है, उसका अंजाम क्या होता है। जैसे उसमें साइकोलॉजी बुक में हम लोग फ्रस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, मगर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रस्ट्रेशन। इंस्टेड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक मंजिल है, हम पाना चाहते हैं, मकसद हम पाना चाहते हैं, उद्देश्य हम उसको पाना चाहते हैं, मगर हम कैसे पाए वो पता नहीं है। यहाँ से शुरू होता है। Karl Duncker has contributed lots of things and many resources are available. Then क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम क्या है हमने एक सिंपल समझ गया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ऑब्वियसली इसको 4 भागों में देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है उससे पहले जो इस तरीके से बताया गया है मेयर एंड विट्रेक ने, what is problem solving? According to Mayer and Vitrek, problem solving is a cognitive processing directed at achieving a goal with no solution method is obvious to the problem solver. This definition consists of 4 parts. The first part is problem solving is a cognitive process. Second part is it is a process. And the third one is a directed. And the last one is a personal. In the sense, cognitive process के अंदर में हमारे जो कॉन्शियस इफोर्ट है, एक इंसान की
बुद्धि की क्षमता के आधार पे हमारा होश और हवा में जो कोशिश करता है, तरह तरह के विकल्प निकलता है, विकल्प ढूंढा जाता है, उसका चयन होता है और उसके बाद हम उसकी कोशिश करता है, उसमें हार जीत के बाद फिर पाना और नहीं पाने के बीच में हम उसके बाद दोबारा हम उसको ठीक करके कोशिश करता है। इस तरीके का एक अप्रोच चलता है। वहां पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक कॉग्निटिव प्रोसेस के रूप में देखा जाता है और एज ए प्रोसेस में यहाँ पे कॉग्निशन को सेंटर में ना रख के जो हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रहा है उस पे केंद्रित करता है। यानी एक तरीके से ये सिस्टम सेंट्रिक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो सिस्टम ही उसका वजह होता है, ना कि कोई किसी व्यक्ति का वजह होता है। तो इस तरीके से डायरेक्टेड में ये एक ग्रुप का इफोर्ट होता है। वहां पे इसका एक सिंपल डायरेक्शन हम एग्जांपल दे सकते हैं सोशल डायनामिक्स में। वहाँ एक थ्योरी है डायरेक्शनल सोशल चेंज में। हम लोग समाज में कई ऐसा है कि हम समाज को अलग एक पर्टिकुलर दिशा में हम उसको परिवर्तन देखना चाहता है, तो उस टाइम में वो परिवर्तन कैसे हो उसके लिए विकल्प ढूंढने का कोशिश करता है। उस तरह की अप्रोच होता है। वहां पे उसको हम लोग डायरेक्टेड जो कंपोनेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसमें देखा जाता है। और पर्सनल जो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक थ्योरी जो होता है, सोशल साइंस में इसके बारे में काफी अध्ययन करते हैं, मगर यहाँ हम लोग इसका पूरा डिटेल नहीं है। मगर हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है वो जो है कुल मिला के इसको हम एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉन्शियस इफोर्ट है, या प्रोसेस सेंट्रिक है, एक डायरेक्टेड है, एक पर्सनल है, या तो सब मिला के है, या तो अलग अलग अप्रोच से देखा जा सकता है। उसके आधार पे जो कोशिश करता है क्या प्रॉब्लम यानी हमारा जो गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करता है, उसके आधार पे इस तरीके से बताया गया है। टाइप्स बहुत सारा है, मगर मुख्य तौर पे अगर हम रिसर्च के एंगल में जाएंगे तो उसका कई सारा टाइप है। उसका जो थोड़ा सा देखने का रिसर्च, हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं जब कोई भी चीज रिसर्च करता है, उसका स्टेटमेंट हम तैयार करता है, तो वहां पे सबको पता है रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। बाकी सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक तो माइक म्यूट करें और एनोटेशन ना करें। स्क्रीन पे जो टच कर रहा है वहां यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, देन एक तो इल डिफाइंड प्रॉब्लम, एक तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के आधार पे डिपेंडेंट है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बोले जैसे हमने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, मोस्टली यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट है उम्मीद है कि रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा, और कई लोग तो इसमें काफी सीनियर है, सबको पता है एक रिसर्च प्रॉब्लम को वो एक तरीके से डिफाइन नहीं किया गया तो उसके आगे हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते। तो कई बार रियल लाइफ सिचुएशन के अगर देखा जाए तो इल डिफाइन यानी प्रॉब्लम है, मंजिल है, पाना चाहता है मगर वो क्लियर नहीं। एक है बहुत क्लियर है फिर भी रास्ता पता नहीं है, एक तो क्लियर नहीं है फिर भी रास्ता पता नहीं है। और जहां पे ऑलरेडी क्लियर नहीं है तो रास्ता क्लियर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया, इस टाइप के आधार पे अगर हम अप्रोच को ध्यान दें तो हमको पहले वेल डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर हम दूसरा टाइप में रूटीन वर्सेस नॉन रूटीन में, रूटीन जो है वेल डिफाइन की तरह, ये ज्यादातर हमारा रियल लाइफ सिचुएशन में जो रूटीन का खास करके रियल लाइफ जो हमारा टॉपिक है, जो रियल लाइफ सिचुएशन, मंजिल पता है, जाना कैसे है ये भी पता है, फिर भी हम जा नहीं पा रहा है। ऐसा इसी टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्व। मतलब मंजिल पता है, उद्देश्य पता है, जाना कैसा है ये भी पता है, मगर जा नहीं पाता है अन्य कारणों की वजह से। उस टाइप की प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग रूटीन प्रॉब्लम्स के नाम से जाना जाता है। और जो नॉन रूटीन है, दिस इज सोशल रूटीन के नाम से आप जान सकता है, जो बिहेवियरल रूटीन के नाम से जा सकता है। यानी जो unpredictable problems in the surrounding, in specific example say behavior is very unpredictable. Every second one's behavior may change, fluctuate from one
moment to another moment. In that case, those type of problems are considered as a non-routine problems. So let me repeat you, the routine problem is very unique in the sense you know the goal, you know how to reach up to that goal, still you are or we are not able to, you know, achieve that goal, because even after knowing the goal and how to go up to that is also known, but still we are not able to achieve that goal. In that type of problems are routine problems. It is defined as a routine problem. Then in some other article, it is also mentioned that problem solving as a kind of a thinking. एक तरीके से ये एक थोड़ा सा सिनोनिम्स टाइप का, ये एक थिंकिंग का एक ग्रुप की तरह माना जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोचने का एक विकल्प। हालांकि थिंकिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकली इसका बहुत ही गहरा चिंतन होता है, क्योंकि खास करके जो हम ह्यूमन बीइंग्स और बाकी एनिमल्स के बीच में जो डिफरेंस जो बताया जाता है फिलोसॉफिकल दार्शनिक टर्म में, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो डिफाइंड एज द थिंकिंग बीइंग। आप सवाल कर सकते हैं क्या तो जानवर एनिमल सोचता नहीं है क्या? सोचता है, मगर उस सोचने की डिग्री जो है इतना ज्यादा अंतर है, जिसके वजह से जो थिंकिंग बीइंग का जो क्रेडिट है वो ह्यूमन बीइंग्स को दिया जाता है। और जब जरूरत पड़ेगी तो इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। सो जब हम बोलते हैं थिंकिंग बीइंग, इस थिंकिंग बीइंग को हम नॉर्मली इस तरीके से डिफाइन करता है, इसको पर्सपेक्टिव थिंकिंग बीइंग, इसको पर्सपेक्टिव थिंकिंग बीइंग। तो this is the major difference between the perspective thinking, which is demarcated from the other animals. And the question comes again, what is the perspective thinking being? So in the simpler form, सरल रूप में देखा जाएगा तो हम इंसान जो है वो समय की आर पार सोचने का एक क्षमता रखता है। जैसे हम लोग कल क्या खाना है, कल क्या गलती किया या सही किया, उस टाइप का बहुत सारा हम लोग का एनालिटिकल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी में हम लोग समय की आर पार, सिचुएशन की आर पार होकर कई सारा चीज हम लोग सोचने लगता है, वो चीज एनिमल में नहीं पाया गया है। एनिमल में जो थिंकिंग जो लगता है वो ज्यादातर कंडीशनिंग बेस्ड एंड इवोल्यूशनरी थिंकिंग टाइप का एक प्रोसेस होता है, मगर वो एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव थिंकिंग वो लोग नहीं कर पाता है अभी तक का रिसर्च में। बाकी फ्यूचर में कुछ और रिसर्च में आ जाए तो पता नहीं। एंड रीजनिंग जो है, इसको बहुत सारा एकेडमिशियन ने इस चीज को लॉजिकल एबिलिटी जो है हम लोग का, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एट्रिब्यूट्स है उसमें लिया जाना है। रीजनिंग जो है, लॉजिकल एबिलिटी बाय ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इज वन ऑफ द सिनोनिमस टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो जिस प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात कर रहे हैं। अगेन डिसीजन मेकिंग, ये जो है सब धीरे धीरे जाके ये एलिमेंट्स बन जाता है, बाद में इसी से जाके हम लोग इंटरप्रेट करते हैं मेथड में क्या क्या होना चाहिए, अप्रोचेस में क्या क्या होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स बिहाइंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा है। इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स का कुछ खास एबिलिटी है जो उस पे चर्चा हो रहा है। तो एज आई सेड, दीज आर ऑल एकेडमिक quotation found in many resources. We have not started the reflective part. So decision making कितना important है problem solving, it has taken synonymous weightage. And critical thinking, इसके बारे में आजकल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो बहुत ज्यादा इसका चर्चा हो रहा है। नो डाउट इन अदर डिसिप्लिन ऑल्सो इसके बारे में काफी चर्चा हो रहा है, और पहले से ही हो रहा है मगर अब और ज्यादा हो गया। उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में तो ये भी कहलाता है कई बार ये खुद अकेले एक बहुत ही ज्यादा ऑटोनोमस एबिलिटी है इनके अंदर में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जो क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है, अगर किसी के पास ये योग्यता है
तो किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने में जो इथिकल समाधान जो है, स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी बहुत सारा है। जो सकारात्मक प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें क्रिएटिव थिंकिंग को एक कोर एरिया में लिया गया है, इसीलिए उसको मॉडर्न टर्म्स में इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम में आजकल बात करता है, क्योंकि प्रॉब्लम खाली सॉल्व करना मायने नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल हार्मोनी एंड द इथिकल अंडरस्टैंडिंग। सो इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी बात होगी। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एबिलिटी, ये एक generalization है। The problem solving is the ability to identify and solve problems by applying appropriate skills systematically. Normally इस तरीके से ही डिफाइन किया जाता है। अगर हम लोग इसको स्कूल कॉलेजेस में लेके जाता है तो बच्चे लोग समझ में नहीं आता है, फिर भी एज ए प्री नोशन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन हम इसको दोबारा हम रिवाइंड करके चल रहा है। Problem solving is a process and ongoing activity in which we take what we know to discover and what we don't know. It involves overcoming obstacles by generating hypotheses, testing those predictions, and arriving satisfactory solutions. Problem solving involves three basic functions: seeking information, generating new knowledge, and making decisions. These are principal level steps. From this only we are going to derive or interpret the exact. We will go up to the method, not only up to the method, we will go up to the skills required for the problem solving. And regarding problem solving strategies, some other contributions are there by Bransford and Stein 1993 and the Blanchard and the Fields 2007. Bransford, the uniqueness of the Bransford and Stein is that problem is a cyclic process. ये एक never ending process है। Say for example, अगर example उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो हम लोग ने कुछ साल पहले एक रिसेशन के बारे में बात की, तो जो फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, और दे हैव गिवन द डाउन पार्ट है, उस कंडीशन को उन्होंने एक रिसेशन जैसे नाम दिया है। इस तरीके से हमारा जीवन की हर पहलू में एक चक्र चलेगा, इसीलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो एक रहेगा या वही कंटिन्यू रहेगा। ये हम जब तक हम होश में है, यानी हम लोग कॉन्शियस है, एक अलाइव है, तो ये साथ साथ लगातार चलता रहेगा। ये ब्रेनस्फोर्ड एंड स्टेन का फाइटिंग में इस तरह के मिलता जुलता फाइटिंग जो है, ऑलरेडी स्वामी विवेकानंद का एक लिखा हुआ किताब में भी आपको मिलेगा कि उसको हम थोड़ा सा बाद में हम लोग का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे। क्लियर कट उन्होंने भी वहां पे इस तरह की बात बताया गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए साइक्लिक, वहां पे प्रॉब्लम ना रहकर हमारा लाइफ की जो एक प्रोसेस है वहां पे एक साइक्लिक प्रोसेस कहा गया है, जहाँ पे जीरो के महत्व को दोबारा दिया गया है, शून्य के महत्व को, तो वहां पे भी हम दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एंड ब्लैंकार्ड के केस में उन्होंने जो रिफर किया है साइकोमेट्रिक इंटेलिजेंस, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है जिसमें सॉल्यूशन फिक्स होता है, जिसका समाधान जो है तय है कि होना है, और सोशल इमोशनल जो कॉन्टेक्स्ट है उसके जो है उसकी सारे अप्रोचेस जो है वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, यानी क्या होगा आपको पता नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा समस्या है, समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे, अंजाम क्या आएगा वो पहले से तय नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा बहुत हाइपोथेटिकल एजम्पशंस कर सकता है, मगर साइकोमेट्रिक इंटेलिजेंस थ्योरी जो स्ट्रेटेजी का जो थ्योरी जो दिया है उसमें समाधान फिक्स है कि अगर ऐसा करेगा तो ये निकलेगा, तो करना कैसा है वो पता नहीं, मगर वो आइडेंटिफाई अगर हो गया तो अंजाम वही मिलता है। तो उस कंडीशन की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रेटेजीज कैरेक्टरिस्टिक है वो साइकोमेट्रिक इंटेलिजेंस में दिया गया है। अगर इन सभी स्ट्रेटेजीज को माइन्यूटली देखा जाएगा तो उसका कई कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किया गया है, एंड इन सभी स्ट्रेटेजीज का जब इम्प्लीमेंट करता है, ये
यहाँ पे मेंशन किया जितने भी पॉइंट्स है एक छोटा छोटा एक टेक्निक का रूप में लिया जाता है। जो सबसे पहले जैसे बता रहा है एब्स्ट्रैक्शन। जो एब्स्ट्रैक्शन जो है सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन ए मॉडल ऑफ द सिस्टम बिफोर अप्लाइंग इट टू द रियल सिस्टम। एक तरीके से ये आपकी ट्राई आउट है। हम पूरी तरीके से करने से पहले हम पहले उसका एक प्रोटोटाइप लेवल में ट्राई करेंगे। हकीकत में हम उसका उपयोग करने से पहले तो हम अगर इसका पैरेलल कंडीशन में अगर हम ले हम लोग खुद के लाइफ में बहुत बार करते हैं अपने जीवन में। हालांकि इंडियन फिलोसॉफी में ये डिफाइन किया जाता है दिस प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, दीज आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। हमारा लाइफ की जो कंपोनेंट है वो हम लोग प्रॉब्लम के नाम दिया जा रहा है एज ए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएगा तो ये काफी पुराना में चला जाएगा और कॉन्टेक्स्ट बहुत ही ब्रॉडर सेंस में चला जाता है सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। तो ये प्रोटोटाइपिंग एंड द ट्राई आउट जो है रिसर्च वाला तो करता ही है। जब हम लोग कोई भी टूल्स बनाता है होगा नहीं होगा पता नहीं है तो हम लोग ट्राई आउट करता है, पायलट टेस्टिंग करता है, बहुत सारा चीजें। तो इस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्शन नाम की टेक्निक दिया गया है इन द स्ट्रेटेजीज। अनदर वन इज एनालॉजी व्हिच इज वेरी कॉमन। एक एनालॉगस सिचुएशन में हम लोग अप्लाई करता है। अगर उस एनालॉगस सिचुएशन में अगर सक्सेस होता है तो रियल सिचुएशन में हम अडॉप्ट करता है। इस मामले में तो इतना है कि आज तक के टाइम में हम लोग ने जितना भी मॉलिक्यूलर लेवल स्टडी या सब एटॉमिक पार्टिकल स्टडी जितना किया है सब एनालॉगस प्रॉपर्टी बेस्ड अध्ययन किया है। यानी हम वो चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। We want to get the knowledge, achieve that level of knowledge, but at the same time we want, sometimes we know how to go there, but factors are there. We have to use analogous situation only. From the analogous situation only, we can achieve the required knowledge, but really we cannot achieve that knowledge in the physical form. So, for example, कई साइंस लोग तो ये समझ सकते हैं अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो बहुत सारा चीजें हमको एनालॉगस सिचुएशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ही उसको हमको वो गोल को हम हासिल किया जा सकता है। ये भी एक टेक्निक के रूप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में लिया गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये तो बहुत कॉमन है और इसकी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में कई बार फोकस ग्रुप डिस्कशन के नाम से हम लोग यूज करते हैं। डिवाइड एंड कंक्वायर सो पॉपुलर इन द डिप्लोमेटिक वर्ल्ड, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड, ये पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा यूज किया गया है। काफी सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में डिवाइड एंड रूल नाम के जो है ये मैनेजमेंट में तो ये प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से एमबीए वगैरह कोर्सेज में इसको करिकुलर लेवल में सिखाया जाता है। बट इसकी जैसा आपने कहा था एक इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हेल्दी कंपटीशन की बात करता है मैनेजमेंट प्रोग्राम में, जो नॉर्मली इन अदर कोर्सेस उसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं होता है। डिवाइड एंड कंक्वायर एंड हेल्दी कंपटीशन, दीज आर रिसेंटली जो एक किताब लिखा गया है, जैसे जुगाड़ नाम का जो किताब लिखा गया है जो IIM टेक मैडम है, जुगाड़ शब्द को एक सकारात्मक रूप दिया गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन दिया गया है। That was also can be taken as an example, as an effort to solve many real life problems, because in that book 101 stories, all the stories are case stories, that means all are based on the real stories, but the interpretation was in a very positive direction. Hypothesis testing so common to all the researcher, हम लोग hypothesis बनाते हैं, ट्राई करता है, चेक करते हैं, नहीं होगा तो दोबारा भी करते हैं। इस तरीके से ये एक टेक्निक है। ये हाइपोथेसिस जो हम लोग रिसर्च में करता है, रिसर्च इटसेल्फ, डूइंग रिसर्च इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेटरल थिंकिंग, अप्रोचिंग सॉल्यूशन इनडायरेक्टली एंड क्रिएटिवली, लेटरल थिंकिंग टेक्निक इन द स्ट्रेटेजी means an analysis, choosing an action at each step to move closer to the goal. It is just like a program learning में टीचर एजुकेशन वालों को अंदाजा होगा, प्रोग्राम लर्निंग में हर एक स्टेप को सॉल्व करना पड़ता है। So it's some kind of कौन बनेगा करोड़पति is based on program design। हम सबको याद है टीचर एजुकेशन वालों को अगेन स्किनर के प्रोग्राम लर्निंग का जो कंसेप्ट है
वो यहाँ पे थोड़ा सा रेलिवेंस दिखाई पड़ता है। सो बाय सॉल्विंग ईच प्रॉब्लम इवन इन द ईच फ्रेम, यानी एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया सिस्टमेटिकली, और उसको छोटे छोटे हिसाब में हम एक्सेप्ट करते जाएंगे। जस्ट लाइक टू एक्सेप्ट द विजन we create missions. So like small missions help us to achieve a larger goal, that is a vision. So we also that is a similar kind of things, means and analysis, मगर यहाँ पे कुछ technical terms use किया गया है। Method of focal object, synthesizing seemingly non-matching characteristic of different objects into something new. So ये इस तरीके से कह सकता है, ये थोड़ा सा एनालॉगस सिचुएशन का एक उल्टा सिचुएशन में भी ट्राई किया जा सकता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक जरिया बन सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। एक तो हमने ऊपर में ऑलरेडी बात किया है जो क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। सो देयर आर आल्सो कांसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग व्हिच हेल्प इन द solving many problem। बाकायदा वो एक स्किल की तरह काम आता है। Morphological analysis, this is based on the say observation and the proving, trying to prove that the problem cannot be solved. The point where the proof fails will be the starting point for the solving problem, to solve the problem। So ये हो गया हार से सीखने वाली बात। छोटा छोटा हार है, वहां से जरिया निकालेगा, फिर शुरू होगा वहां से। हर एक जहां हार के, जहां पे फेलियर का मोमेंट को नोटिंग करेंगे, वहां से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। और इस तरह का बच्चों को सिखाने लायक बहुत सारा गेम है, और इसी वजह से ये एक टेक्निक के रूप में स्टैंडर्ड, यहाँ पे जितना आइडेंटिफाई किया गया, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड टेक्निक्स आइडेंटिफाइड एज फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। Reduction technique, research technique, root cause analysis technique, and trial and error known by so many people, testing possible solution until right one is found। ट्रायल एंड एरर हमारा साइकोलॉजी वाला टीचर एजुकेशन में बहुत पढ़ाई होता है। अब हम स्ट्रेटेजीज टेक्निक के बाद हम जो मेथड पे एंट्री कर रहा है, बहुत सारा मेथड है, उसमें से 8D मेथड है, ये डिसिप्लिन 8 मेथड के नाम से जाना जाता है। एंड इसको ये एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, और इस तरह बहुत सारा है। सो वन ऑफ द मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, थोड़ा सा डिटेल में जो आपके सामने लाया है, उसका नाम से ही पता चल जाता है। इसमें कोडिंग किया गया है DO से लेके D8 तक। That is 8 discipline model of problem solving method। First one is plan करना है, और प्लान करना कैसा है ये सबको लगभग पता है कि हाँ प्लान करना है, प्रॉपर्ली स्टडी करना है कि है क्या प्रॉब्लम। इसमें तो गुड पार्ट इज दैट, I will say not only good part, the best part is the use a team, which will convert it into collective effort. There are lots of studies, there are lots of research studies problem solving को लेके। उसमें सबसे ज्यादा इसमें जो पॉजिटिव फाइंडिंग, सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फाइंडिंग्स जो आया है कलेक्टिव एफर्ट्स के बारे में आया है, स्पेशली फॉर द इन द ह्यूमन एफर्ट्स। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल अकेले कभी लर्निंग नहीं होता है, अकेले एक्चुअली कभी परफॉर्म नहीं करता है, ऑलवेज एज ए मेंबर ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में होता है, जिसके कारण ये जो यूज ए टीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग को लगता है कि हम अकेले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मगर असल में किसी न किसी तरीके से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीम में काम कर रहा होता है। इससे अच्छा है कि टीम को पूरा प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाए, और टीम के लेवल में अगर हम करें तो वो मेथड जो है वो काफी अच्छा इफेक्टिव मेथड रहेंगे। Define and describe the problem. This is done in the research part also. Define and describe the problem. Third one is develop interim containment plan. It is just like
जितना हमने टेक्निक बताया ऊपर में, उनमें से यहाँ से भी हम साइड ले सकते हैं। इट्स रेडीनेस फॉर द पायलट टेस्टिंग टाइप की एक जो एक ट्राई आउट के लिए प्लानिंग का जो वो है वो होना चाहिए। चौथे स्टेप में, फोर्थ में, डिटरमाइन, आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द रूट कॉज एंड द एस्केप पॉइंट। इसको मैंने इसलिए सब पॉइंट्स को रखा है एंड आपके सामने मैं इसको रीड आउट करना चाहता हूँ एज गिवन इन द आर्टिकल itself. Identify all the applicable causes that could explain why the problem has occurred. Also identify why the problem has not been noticed at the time it occurred. All causes shall be verified or proved not determined by the fuzzy brainstorming. One can use 5 whys or Ishikawa diagrams to map causes against the effect or the problem identified. इस तरह की जो क्रिटिकल अप्रोच है वो कभी काफी सारा इन्वेस्टिगेटिव स्टडी में करते हैं। प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग को पता क्यों नहीं चला, होने कैसे दिया, इसका इफेक्ट क्या रहा, इतना ज्यादा जो इन्वेस्टिगेटिव स्टडी में इस तरह की क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसका नेक्स्ट स्टेप में चूज एंड वेरीफाई परमानेंट करेक्शन, प्रॉब्लम, non-conformity, implement and validate corrective actions, take preventive measures and congratulate your team. This is the D8 model of problem solving method. Like that, there are many standardized, popular in the in the society. Many methods are there. Say for example, APS, applied problem solving is one of the method. A discipline problem solving, GROW model. Hello, somebody's mic is on, please. Hello. तो ये जितना यहाँ लिस्टिंग है ये सब तो लगभग यूं समझ लीजिए मैनेजमेंट प्रोग्राम में MBA के स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। द क्वेश्चन इज बाकी जगह में इतना क्रिटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम स्टडी नहीं करता है। वी डोंट टेक टू मच सीरियसली, वी वेरी मच डिपेंड ऑन द वेरी मच प्रॉब्लम सॉल्विंग की जहां बात आता है, अदर देन दिस प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट कुछ और के बाकी किसी भी डिसिप्लिन में कैसे सॉल्व करना है इतना टेक्निकल और स्टैंडर्ड लेवल में ना सीखते हैं ना सिखाया जाता है, which can be noted as a suggestive part at the end of the discussion so that we all collectively can bring this into the notice of the curriculum framework or so-called administrative body. How much in today's context problem solving is important, I'll come to you that. But ये एक थोड़ा सा एक एग्जांपल रखा आपके सामने जो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स और हम लोग फॉलो करता है ये जो जनरलाइज्ड मेथड्स का जो स्टेप्स है। तो मोस्ट पॉपुलर जनरलाइज्ड मेथड इज हम लोग इसी को ही यूज करते हैं, दिस वन। सबसे ज्यादा जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में पूछते हैं तो इसके बारे में बताता है व्हिच आर वेरी जनरलाइज्ड, व्हिच इज वेरी जनरलाइज्ड इन नेचर और इसी में खत्म हो जाता है। तो दिस इज जनरलाइज्ड वन, बट मैंने आपको ऊपर में 2 क्रिटिकल लेवल की जो बहुत ही ज्यादा यूनिक मेथड्स है उसके बारे में मेंशन किया है, सो दैट आफ्टर द सेशन वी कैन थिंक अबाउट इट, इट कैन बी फूड फॉर थॉट। सो दिस जनरलाइज्ड स्टेप्स आर द मेथड, इसलिए मैंने यहाँ इसकी जो मेथड की जो हिस्सा है जो एग्जिस्टिंग है यहाँ पे हम आपके लिए एंडिंग कर रहे हैं। उसके साथ इसका जो मेजर अगर हम चाहते हैं कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है उसका कुछ नाम रखा है जो एकेडमिक लाइन में कंट्रीब्यूटर है। आई एम नॉट स्टिल गोइंग इनटू द कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड पार्ट। सोशल बैकग्राउंड पार्ट में बोलेंगे तो बहुत सारा चीजें अभी आएंगी। सो आई हैव साइटेड गिवन सम नेम्स हियर एंड वेरी पॉपुलर हु हैव स्ट्रांगली कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और ये नाम और ये पीपीटी हम शेयर करेंगे, ये नाम देखते हैं आराम हम लोग जाके देख सकता है। मैंने इसको थोड़ा सा इनफॉर्मली दिया है, आई डिड गिव हियर इट एज ए रेफरेंस
these are the reference actually, but I have not written this here in the slide as a reference format, क्योंकि हम लोग वो देख देख के बहुत सारा हम लोग का दिमाग में एक तो सैचुरेशन हो चुका है। आई वांटेड कि ये खाली एक ग्लिम्स हो, एक बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट और इग्नाइटिंग पॉइंट हो। So these are the contributors. Hello, Satish sir. Hello. Hello. सतीश सर कुछ कहा है क्या? ओके, आई कीप इट ब्लैंक। ट्रेडिशनल पार्ट को मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। अगेन एंटरिंग इनटू अनदर टेक्निकल एरिया, मैं ट्रेडिशनल पार्ट को यूं कहूंगा, जो हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट है, हमारा जो एग्जिस्टिंग कल्चरल एस्पेक्ट है, से वी कैन से दैट सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। अगर इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो बहुत सा पंकज सर, am I audible? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं सतीश सर, एक्चुअल में कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। कई लोग ने माइक ऑन करके रखा हुआ है तो बड़ी नॉइजी बैकग्राउंड आ रहा था ना। मैं भी करता हूँ। ठीक, आप एडमिन ने आप म्यूट कर सकते हैं। और so respected learned members here who are in this program, इसको मैंने इसलिए ब्लैंक रखा, यहाँ मैं बहुत ज्यादा रिसर्च वे में नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है सबको पता है और हर किसी को पता है, हर घर में होता है। सबसे ये इसलिए कि in every family from our childhood we always see the discussion of a problem and how the problem has been taken care, whether success or failure। हर फैमिली में, फैमिली एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी और सोशियो कल्चरल कंपोनेंट, एवरी इंडिविजुअल हम लोग ने सबसे बचपन से देखा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो कहना चाहते वो बात क्या है, इंडिया सबको पता है, इंडिया एज ए हाईली डाइवर्स कंट्री, बट इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जाने से जो एक आइडियलिस्टिक कंट्री जो हुआ है, जिसके बिलीफ सिस्टम के वजह से बहुत पॉपुलर, सबसे द बिगेस्ट मेथड यूज इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, आई वुड से इन आवर ट्रेडिशनल कम्युनिटी, द बिगेस्ट मेथड इज quoted from some old age saying, जो भी होता है अच्छे के लिए होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इफोर्ट लगाता है और उसके बाद सक्सेस और फेलियर के बारे में जो डर से बाहर निकाल के रखाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने एक और चीज कहा उसमें, यू जस्ट गिव योर इनपुट इफोर्ट, आउटकम के बारे में चिंता नहीं करना है, आप मेहनत कीजिए, आउटकम के बारे में, आउटकम आपके हाथ में नहीं है। तो ये मॉडर्न जो थ्योरी अभी हमने चर्चा किया है कैसे रिलेवेंट है, हमने जो रूटीन और नॉन रूटीन वाला जो बात की है, तो नॉन रूटीन है उसमें हम लोग को अनप्रिडिक्टेबल होता है, सोसाइटी का जो फिनोमेना है उसमें रहेंगे तो बहुत सारा हमारा रियल लाइफ सिचुएशन जो है ज्यादातर नॉन रूटीन वाला प्रॉब्लम से घेरा होता है। तो हम जो स्ट्रेटेजी और मेथड जो यूज करेंगे तो कौन सी होगा, जो नॉन रूटीन वाला होगा, कई सारा चीजें। मगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि जो सब लेवल प्रॉब्लम, एक इंडिविजुअल लेवल पे एक एंट्रेंस देना चाहता हूँ, एग्जाम देना चाहता हूँ, तो एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, यानी एग्जाम देने चाहता हूँ, ये पूरा क्लियर है, मकसद क्लियर है, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, रास्ता पूरा क्लियर है, फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है, अंजाम को पा नहीं पाता है। तो उस टाइम में जो वहाँ ये एग्जाम्पल जो है कहाँ रिलेवेंट हो रहा है, जो हमने रूटीन टाइप की जो प्रॉब्लम है, द टाइप ऑफ प्रॉब्लम
जो रूटीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वहां पे ये बात चला गया। मगर सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। यानी ये कब बोला जाता है, when you fail somewhere, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक मोमेंट में फेल होता है, तब इस तरह की बात करके न्यूट्रलाइज किया जाता है। दैट मीन्स कहने के लिए बहुत ही लाइटली इसको एनोटेशन कौन यूज कर रहा है, लाइटली हम उस बात को रोज रोज की बातों में लिया जाता है, मगर एक्चुअली वो एक मेथड के रूप में लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पूरा इंडिया में, गांव गांव में, शहर शहर में, मोस्ट ऑफ द फैमिली में उसको जब भी अब फेल होता है उसको उस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है। एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग, फेल को प्रॉब्लम, जैसे आपका एक मिशन है फेल हो गया, जैसे फेल होता है तो एक तो कोई प्रॉब्लम होता है, जब प्रॉब्लम से फेल होता है तो हारता है, कोई उसका एक प्रॉब्लम होता है, उसको टैकल कैसे करेंगे उसका एक मेथड के रूप में ये एक हाउस होल्ड में टूल्स की तरह इसको यूज करता आ रहा है। सो ये फेज इसलिए ब्लैंक रखा क्योंकि हर कोई यहाँ पे जितना है, everyone in this the program, whoever out of the program, everyone knows about that, and to I mean make an abstract out of that is not, I mean, sufficient here to write something, so I kept it remain blank. So this is about the traditional perception जो मैं कहना चाहता था। ट्रेडिशनल सेटअप जो मोस्टली दोनों ही रूटीन और नॉन रूटीन का केस में सब हाउस होल्ड मेथड से यूज करता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता है। इंक्लूडिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम में जो सिखाया जाता है, जितना अभी मैंने स्टैंडर्ड मेथड बताया है, those things are all related with the corporate organization world, just like that in political science system, social science system, वो सब बहुत ही लार्जर सिस्टम, पूरा लार्जर सोसाइटी के बारे में सिखाया जाता है। मगर एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक स्मॉलर यूनिट पे, फैमिली लेवल पे, या एक इंडिविजुअल का रियल लाइफ में किस तरीके से आता है, इसके बारे में बहुत ही कम फॉर्मल कंडीशन में इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है, ना सिखाया जाता है। सो से वी कैन यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन ये कर सकता है, इन आवर डे टू डे रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशन, 90 more than 90%, 99% we adopt inherited knowledge or inherited skills to solve the problem. So inheritance methods जो है, पूर्वज की जो मेथड्स है, वही हम लोग डेली लाइफ में हम उसको यूज करता है। सो स्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम अपना डे टू डे का रियल लाइफ सिचुएशन में जानता नहीं है और यूज करता नहीं है। एडवाइस के रूप में आता है तो अलग होता है, फिर काउंसलिंग के रूप में आता है तो अलग होता है। इसके साथ हम करंट ट्रेंड में हम चलेंगे, टाइम इज क्लोजिंग। करंट ट्रेंड में लकीली करंट ट्रेंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लकीली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एज एन एबिलिटी इसको सीरियसली लिया गया है। काफी पुराना है मगर अभी ये फ्रंट में आ रहा है, अभी पॉपुलैरिटी में आ रहा है। बहुत लोग को भी इसके बारे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका पता नहीं था। इसमें लेके आया इसको, नॉर्मली इसको कहते हैं ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। There are many graduate attributes जो हर एक यंगस्टर्स को, एक यूथ के अंदर में एक सर्टेन एज के बारे में ग्रेजुएट इसलिए कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद कम से कम ये एट्रीब्यूट उसके अंदर में होना चाहिए, ये योग्यता एक होना चाहिए। उनमें से बहुत सारा है। बेसिकली 9 पहला शुरू किया था, 9 में शुरू कर 9 ग्रेजुएट, देयर आर 9 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। बाद में 11, अभी किसी ने उसको 15 तक, 15 तक बनाया गया। मगर दिस
problem solving has taken a unique place and special place. Anyhow, any graduate must have the ability to solve a problem. ये आया कहाँ से है? एक पूरा इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च में पूरा वर्ल्ड वाइड के सर्वे करने के बाद पता चला है कि जहां जहां कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया है, दिस आइडिया केम फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें जो सिलेक्शन होता है, उसकी जो सिलेक्शन होने की कारण जो है वो उसको लिस्टेड किया गया, क्या क्या कारण है। उसमें देखा गया है कि जो हम लोग का एकेडमिक नॉलेज है वो खाली 30% के आसपास ऑक्युपाई करता, रिमेनिंग 70% जो है उनकी एबिलिटी पे डिपेंड होकर उसको रखा गया। फाइनली उस पे इंटरनेशनल लेवल में इतना चर्चा हुआ, चर्चा होने के बाद उन सभी क्राइटेरिया को उठा के एक नाम दिया गया ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स नाम से। यानी ये एक हर कोई एक ग्रेजुएट को ये एबिलिटी उनके अंदर में होना चाहिए। दैट मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग एज एन एबिलिटी। अब हर किसी ग्रेजुएट्स में ये एक योग्यता के रूप में आएगा तो क्या होगा, ये एक क्राइटेरिया होगा, लर्निंग आउटकम का एक क्राइटेरिया होगा। दैट मींस जब लर्निंग आउटकम का एक क्राइटेरिया होगा इन एवरी प्रोग्राम और एवरी कोर्स एंड एवरी प्रोग्राम, हर तरह की शिक्षा पद्धति में, हर तरह की कोर्स में ये शामिल होने लगेगा कि तो परीक्षाओं में जब असेसमेंट आंकलन मूल्यांकन करेगा तो ये एक क्राइटेरिया रहेगा। हम लोग अभी तक देख रहे हैं एक एकेडमिक एबिलिटी जो देख रहे थे, एकेडमिक एबिलिटी जो है उसको हम ये और सतीश साहब थोड़ा कंट्रोल कीजिए। एकेडमिक एबिलिटी जो है उसको नॉलेज एबिलिटी के नाम से ले लिया गया है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स में, व्हिच इज अ फर्स्ट ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स नॉलेज एबिलिटी। इस तरीके से उन सभी में से प्रॉब्लम सॉल्विंग एज एन एबिलिटी लिया गया है। सो बचपन से लेके पूरा हायर एजुकेशन तक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब जो जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, अब हर एक बच्चे के पास, हर एक युवा के पास ये एक क्राइटेरिया बन के फॉर्मल वर्ड में सीखने को मिलेगा। इससे ये जरूर उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च में पता चल गया है कि जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उनकी सोशल एडाप्टेबिलिटी एंड सक्सेस इन द सोसाइटी बिकम्स बेटर एंड स्मूथ। उसका काफी सारा रिसर्च फाइंडिंग है और इंटरव्यू है उन लोगों का, क्यों जो रिक्रूटर है उनका इंटरव्यू है, क्वालिटेटिव रिसर्च की फाइंडिंग है जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो जहां भी वो काम कर रहा है, wherever he or she is working, एक प्रॉब्लम सामने किया, उस प्रॉब्लम को कंसर्न के कन्वर्ट नहीं करते हुए अपने लेवल में सॉल्व करने के बाद रिपोर्टिंग करता है। देयर इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय say one person in an organization, but solve, and after the problem is solved and the reports to the, say for example, wherever to be reported. So this ability has become a significant criteria in the structure in social world, which will be definitely very helpful in our informal world also, in day-to-day real life situations also. The question comes here, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये कई लोग पूछा है ये स्किल है क्या या एबिलिटी। स्पेशली जो ओवरऑल प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है वो एबिलिटी है। एक समस्या आया समाधान की एबिलिटी, मगर हम लोग ने शुरू में स्टार्टिंग में जो देखा जनरलाइज फॉर्म में कि प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाना, इफ ए पर्सन इज एबल टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुली, that there is identification is a skill. Identification is an skill. So problem solving method में problem solving ability जो है वो problem solving method जो है वो एक ability है, और उसके अंदर में जो skill है, ये जो जनरलाइज स्टेप में जितना देख रहा है, इस काम को कर पाना, ability to identify, that becomes a skill. एनालिसिस एज एन स्किल, इस तरीके से ये सारा जो है स्किल बन जाता है। देयरफॉर इसके लिए क्या कहते हैं, एट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको ले लिया गया है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को फ्रॉम द चाइल्डहुड इसको करने के लिए ले लिया गया है, और 2005 से ऑलरेडी लिया है। किस तरीके से लिया है? इन सभी स्किल को हम प्रोसेस स्किल जो है, स्पेशली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइंस, प्रोसेस स्किल से नाम ले लिया गया। There are two type of process skill, that is basic process skill and the advanced process skill. ये जो दोनों है, बेसिक एंड द एडवांस प्रोसेस स्किल जो है, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का स्किल बन जाएगा। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का स्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्रोसेस स्किल क्यों लेके आया, कैसे रियलाइज हुआ? आज के तारीख में the present 21st century is under the understanding of knowledge construction. Knowledge construction के paradigm में we are now in the paradigm of knowledge construction. Earlier there was no concept of knowledge construction. So now we are in the era of knowledge construction. For knowledge construction, these basic process skill, advanced process skills are required. For this becomes the process आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बन जाता है। और ये सारा एक साथ अगर हम प्रॉपर्ली यूज कर सकता है तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो जाता है। अगर है तो ये जो बेसिक प्रोसेस स्किल में द एग्जांपल के तौर पे द फर्स्ट स्किल इज ऑब्जर्वेशन। कोई भी व्यक्ति अगर ढंग से ऑब्जर्वेशन कर सकता है, ऑब्जर्वेशन स्किल इन द बेसिक, सो जो ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं कर सकता तो आगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? Therefore, आज के तारीख में इन टुडेस करेंट टाइम वी कैन से दैट ऑलरेडी इट इज इन द फॉर्मल स्कूल वर्ल्ड। हम लोग ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और आने वाला टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, पहले हमने क्या बताया, खाली इनफॉर्मल वर्ल्ड के थ्रू इनहेरिटेंस मेथड्स को यूज करते करते हम लोग आज तक आए हैं। मगर आने वाला जनरेशन अब बोथ इनहेरिटेंस मेथड्स प्लस स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स विद सफिशिएंट लेवल ऑफ स्किल्स अब यूज कर पाएगा। इस तरीके से जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मेथड जो है ये आपके सामने मैंने रखा है और कुछ आने वाला संभावना रखा है। मगर लाइफ के साथ मैं जोड़ना चाह रहा था लाइफ, व्हाट इज लाइफ, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि मैं कई लोगों को फॉलो कर रहे थे। व्हेन वी से लाइफ, अभी लाइफ को हम नहीं जाएंगे, फिर कभी जाएंगे। सो फिलहाल लाइफ जो है हर किसी का अपना अपना मत इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, इसका मतलब बहुत सारी तरीके से निकल के आएगा। सो इट इज अ कॉन्टेक्स्ट, एवरी इंडिविजुअल इज अ लाइफ इन द सोशल स्ट्रक्चर, देयरफॉर इन एवरी इंडिविजुअल एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क, एवरी इंडिविजुअल एज ए part of the social structure must have certain skills to solve the problem. With this, I would like to stop here my presentation. We can continue for discussion. Thank you. Excuse me, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, Dr. Neerja Singh, psychologist, Dehradun, sir. I'm Dr. Neerja Singh from Dehradun, sir. Good afternoon. Hello. Hello, Rohit sir. हंड्रेड ही फुल चले पड़ा, एक भी ऐसा तो अगला वाला एंटर हो गया। हेलो Good afternoon, sir. Dhriti ma'am, yes, बताइए। Dr. Neerja Singh, sir, from Dehradun. Yeah. Sir, my question to you is, in my practice with children with ADHD, children with depression and anxiety, adolescents,
Sir, you talked about problem solving skills and you talked about their importance in management sections, in educational sections. But sir, when we talk about mental health disorders, children do not have the capacity to use those problem solving skills, A, because they've not been taught in school, sir. There's more of emphasis on just completing a course, a syllabus, rather than on practically using it in your daily life, sir. And sir, when children land up with major mental health disorders like anxiety, depression, you could say alcohol and drugs. So for them to use problem solving skills get very technical. And secondly, sir, they do not have the sense and I would say the situation may not allow them to use those skills. Then what does a person do, sir? Exactly. Yeah, it's a wonderful part because in the inclusion, for the inclusive situation, we have to have a very different, plan in this entire Yes, discussion. sir. That is, say, IEP program. Most we say inclusive school, but none of the teacher in India right now, they do not know how to develop an IEP included lesson plan. I agree. So until then, all the teachers or academicians are aware about the IEP program. It is going to be really difficult to teach or to let them know some basic process skill even. I have visited, for example, I have visited many, visually challenged institutions where children are there. Yes, sir. Then including Composite Research Center also. And say, for example, let us start from for their observation, priority of their observation is through the listening skill, for example. So, Right, sir. Yeah. So when they play cricket, these visually challenged students, when they play cricket, they are first trained to identify different kind of sounds which have been specially created for the ball and the bat and the stump and the running and all. So right, sir. This part needs a real hard work from the, I think all the teachers should be motivated to understand, first of all, basic IEP program, because this is the biggest challenge. I forgot to mention here. You have information is very important. I found people think that inclusion and IEP is especially for special education. It is no. Up to 40% of the differently able children, they can be given, all these skills. Only thing is that alternate training is required. They will gain all these abilities. Sir, one more question before I Yeah. leave the Zoom class. Sir, आपने बोला कि you talked about problem solving skills being the basic skills. So communication is a very basic form of human life and human language. And very few colleges pay emphasis on communication skills when children enter graduation, except for those who are BBA and MBA children, sir. And children from the psychology background. What about computer science? What about economics? These children lack majorly in problem solving skills, sir. So instead of introducing it in the primary education or higher school education, we should also imply it on the graduation and the post-graduation level, sir. Because children will then be able to have a better mental setup to be able to use problem solving techniques. Yes, ma'am. I would like to share that communication skill पहले जो सोचता था उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. Communication skill has an independent, because of its importance only, it has already received a very important independent place in the graduate attributes also, and in new education policy. Yes, sir. Starting from the school, it has been specially mentioned that basic communication ability and the numerical ability. Basic communication ability starting from the regional language, mother tongue. Because earlier we thought that whenever we talk about, when we were child, communication skill we talk about communication skill, we have been taught about particularly, let's say, language articulation only. Now, yes, language across curriculum has also come. Because the communication is so important in terms of knowledge construction, it is not depend only on the language teachers. Because yes, our life is a meaning making process, and the meaning cannot be made without a language.
So communication skill has got an independent space in the graduate attributes. So therefore, it is a That's it. basic quality required for an individual, even to solve a problem. Thank you, sir. Thank you Thank so you. much. Thank you, ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हेलो Yes, रोहन sir. सर, Yes, sir. मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रहा है, आ रहा है। ओके ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट में से अगर किसी के पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज हमारे स्पीकर, हमारे रिसोर्स पर्सन हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ बिल्कुल साझा कर सकते हैं ताकि आगे बढ़ें और कुछ नए डायरेक्शंस हम ले सकें। हेलो, अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करें या अपना माइक अनम्यूट करें और आप बिल्कुल ऑनलाइन के वजह से थोड़ा सा कोरोना हैंगओवर इफेक्ट में है सब। मे बी हेलो सर। हाँ हेलो, जी जी Hello, बोलिए sir. मैम। गुड आफ्टरनून। कौन, ऋचा अग्रवाल मैडम? हाँ बोलिए मैम यस प्लीज। सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। हेलो, यस सर, यस मैम, यस मैम। हाँ आपकी आपकी आवाज आ रही है मैम, बोलिए आप प्लीज। हाँ सर, बच्चे को जैसे 12-13 मिनट का बच्चा है और पढ़ाई की उसे चिंता रहती है, बट वो करता नहीं है, सिर्फ चिंता करता रहता है, तो कैसे डील करना चाहिए ऐसे बच्चे को? मुझे रहता है बहुत काम में एंग्जाइटी रहता है, बर्डन लेता है, बट उसे करेगा नहीं। मैं बेटे को बोलती तुम करो तो बैठ के, तभी तो खत्म होगा वर्क। तो हाउ टू डील द चाइल्ड? मैडम, इन ब्रीफ ये बहुत अच्छा लगा। आई एम ए ट्रेन काउंसलर ऑफ द एनसीईआरटी और मैंने ऐसा सिचुएशन बहुत सारा काउंसलिंग किया है और हम ज्यादातर मैंने पेरेंट्स का काउंसलिंग करने के बाद सक्सेस हुआ है इस प्रॉब्लम में। एनीवे, हम इसको हम आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं एंड मेरे साथ पूरा इंडिया का स्पेशल काउंसलर्स बोलने से इंडिया में डर लगता है, वो साइकोलॉजी टाइप का, ऐसा नहीं है। काउंसलर्स खाली एक फैसिलिटेटर है, जस्ट लाइक ए टीचर। इंडिया में इसका परसेप्शन बहुत अजीब टाइप का सोचता है, काउंसलर बोलने से इससे कोई मानसिक समस्या, ऐसा कतई नहीं है। वी आर जस्ट फैसिलिटेटर, जस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू एज ए टीचर व्हेन वी से काउंसलर। गाइडेंस काउंसलर जो है पूरा एक नेशनल लेवल के नेटवर्क है हमारे साथ है। मैडम, हम आपके साथ इस आपका क्वेरी का हम समाधान करने में जरूर हेल्प करेंगे, मगर वो कुल मिला के अभी यहाँ पे एक जनरलाइज आंसर उसका सफिशिएंट नहीं होगा शायद। ठीक है सर, आप नंबर दे दीजिए अपना। रोहन सर, हाँ सर। रोहन सर, हाँ सर। एक रिक्वेस्ट ये है, आप चैट बॉक्स में अपना ईमेल और कांटेक्ट नंबर अगर लिख देंगे तो ऐसे जो भी और पार्टिसिपेंट वो भी भविष्य में फ्यूचर में आपसे जुड़े रहेंगे या प्रॉब्लम्स के लिए कांटेक्ट कर पाएंगे आसानी से। जी। ओह, ये और भी बहुत सारा क्वेरी है। I forgot to see so many questions are there. I think सतीश सर के पास ये सारा क्वेश्चंस का लिस्ट आउट करेंगे तो I would like to address all this answer on written part and will share. मगर फिलहाल मेरा जो ईमेल आईडी और नंबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी 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 प्लीज। एक ने पूछा है नॉन रूटीन जो था वो कैसा था करके। हाँ यस 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 सर, नॉन रूटीन वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। यस सर। नॉन रूटीन रोहन सर, जो हमारा बिहेवियरियल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स गोल क्लियर नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, उस टाइप की प्रॉब्लम जब आते हैं उसको नॉन रूटीन प्रॉब्लम कहते हैं। एक रूटीन था जो बहुत क्लियर, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, एग्जाम देना है और उसके लिए मुझे पता है, रास्ता भी पता है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है, बहुत पढ़ना पड़ेगा खुद ही एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो मगर वो रूटीन हो जाता है, मगर हमारा रियल लाइफ सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है, क्लियर नहीं होता है, कहाँ से जाना है क्लियर, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस वाला प्रॉब्लम जितना है वो नॉन रूटीन में चला जाता है। और उसका और लिटरेचर मैं शेयर करूंगा, ये अगर सतीश सर के पास और कोई दिक्कत नहीं।
आई हैव द फुल लिटरेचर, अभी तो मैंने थोड़ा ब्रीफिंग कर दिया था इसमें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एक्चुअल में आपका ईमेल और कांटेक्ट नंबर जो आपने शेयर कर दिया, तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं वो इसको नोट करके रख सकते हैं, फ्यूचर में जो भी बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। और मैं ये भी इंफॉर्मेशन उसके लिए कांटेक्ट कर सकते मैं हैं। ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये तो एक हमारा चर्चा की शुरुआत है, हर कोई यहाँ पे रिसोर्स पर्सन होता है, एवरीवन आर रिसोर्स पर्सन, दिस इज शेयरिंग द एक्सपीरियंस, और हर कोई आप यहाँ होगा तो मैं भी एक पार्टिसिपेंट के रूप में आके सुनूंगा, चर्चा करेंगे, इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। ये है। श्योर, थैंक यू सर। अगर और कोई पार्टिसिपेंट हो जिनका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड और म्यूट अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन टू आवर स्पीकर प्लीज। सर जैसे एग्जाम से पहले हमारे एंजाइटी होती है कि हाँ ठीक होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर हम? एग्जाम एंजाइटी हमारा मन की बात में बहुत बार हुआ है। मैम, कुल मिला के प्रॉब्लम का सबसे एक सिंपल है, पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम एक्सेप्टेंस से पहले हम डर जाते हैं तो वो जब इम्प्लीफाई हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रास्ता निकलेंगे, बट एज ए काउंसलर हम लोग डायरेक्टली रास्ता नहीं बताते हैं, वी अलाउ यू टू थिंक, बट कैसे उसके लिए डायरेक्शनल थिंकिंग कैसे होगा उसमें हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। ऐसा किसी भी आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए ये आपका प्रॉब्लम है और ये आपका सॉल्यूशन है बोल के एक्जैक्टली कोई स्ट्रक्चर बना नहीं सकते। हाँ, एंजाइटी है, टैकल कैसे करेगा इसका एक जनरलाइज आइडिया होगा, मगर उसका रास्ता तौर निकलेगा, आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। मगर पहले एकदम एक्सेप्ट कीजिए, यस देयर इज